বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, ছিলেন দুই মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং দেবশ্রী চৌধুরী। এরপর বসিরহাটে প্রশাসনিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমরাজ, এই বৈঠকে মূলত কারা কারা যোগ দিয়েছেন, কি জানা যাচ্ছে এই বৈঠক সম্পর্কে? বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল ছাড়াও দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তার সঙ্গে কেন্দ্রের ও রাজ্যের আধিকারিকরা রয়েছেন, রাজ্যের মুখ্য সচিবও রয়েছেন বৈঠকে। আমফানের প্রভাবে রাজ্যের যে অংশগুলিতে সব থেকে বেশি প্রভাব হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিশেষত উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, সমগ্র রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি মূলত যে উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা যে জেলাগুলির বিশেষ অংশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানকার স্থানীয় পর্যায়ের আধিকারিকরাও রয়েছেন এই বৈঠকে। 18 থেকে 20 জনের একটা সদস্য দল এই বৈঠকে রয়েছেন। এই বৈঠকে মূলত দেখো ইতিমধ্যেই দুটো রাজ্যের তরফে আর্থিক প্যাকেজের কথা বলা হয়েছে, আর্থিক প্যাকেজ দাবি করা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আজকে বৈঠকটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কিছুক্ষণ আগেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল হেলিকপ্টারে, বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে একসঙ্গে গোসাবা, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালীর মতো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন হেলিকপ্টারে করে। যেহেতু রুট ম্যাপ নির্দিষ্ট ছিল, সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রধানমন্ত্রীকে সেই হেলিকপ্টারের থেকেই জায়গাগুলি নির্দিষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে এই এলাকাগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছেন। তারপরে বসিরহাটের এই কলেজের মাঠে তিনি হেলিকপ্টার নামেন এবং তারপরে সোজা বৈঠকে চলে যান। যেটা মনে করা হচ্ছে এই বৈঠকের যে সময়সীমা সেটা আরো এগোতে বাড়তে পারে, কারণ বৈঠকের বিষয়সূচি যেহেতু রাজ্যের তরফে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, রাজ্যের তরফে বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে বলার রয়েছে, ফলত সব মিলিয়ে এই বৈঠকের সময়সীমা আরো একটু বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। কেননা দুপুর 1টা নাগাদ এখান থেকে প্রধানমন্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই বৈঠকের সময় বাড়তে পারি এমনটাই মনে করা হচ্ছিল। সেক্ষেত্রে যেটা এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে যে বৈঠকের সময়সীমা বাড়ছে, আরো বেশ কিছুক্ষণ এই বৈঠকটি চলবে এবং তারপরেই বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল আবার বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। ধন্যবাদ সোমরাজ। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছে, যেরকমটা জানালেন আমাদের প্রতিনিধি সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা সেই বৈঠকে রয়েছেন এবং সেই বৈঠকে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি যেমন জানানো হচ্ছে এবং আর্থিক সাহায্যের কথাও বলা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সৌরভ গুহ। সৌরভ, তোমার কাছে কি তথ্য রয়েছে? দেখো, আমরা যতটুকু জানি যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দুর্গত বাংলা দেখে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবং তিনি তারও আগের দিন, অর্থাৎ যেই দিন এই আমফান আছড়ে পড়লো কলকাতার মাটি এবং সহ এই দক্ষিণ বঙ্গের মাটিতে, সেই দিনই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে তিনি কিন্তু দ্রুত কেন্দ্রীয় সাহায্য দাবি করেছিলেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে গতকাল তিনি যে কথা বলেছেন সকালবেলা, সেখানেও কিন্তু দ্রুত টাকা দেওয়া হোক রাজ্যকে এত বড় একটা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য। मुकाबला करना पड़ा था। उस समय सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उड़ीसा पर हुआ था। आज 1 साल बाद फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है।
जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए
हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা শুনলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্য রাখলেন এবং এই বৈঠকে সমস্ত বিষয়টি তিনি যেমন খতিয়ে দেখলেন এবং বাংলার পাশে যে কেন্দ্র রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, সেই বার্তাও দিলেন। 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের আপাতত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভালো কাজ হয়েছে, 1000 কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। এই সংকটে গোটা দেশ বাংলার পাশে রয়েছে বলে জানান তিনি। এই সংকটে আমরা রাজ্যের পাশে রয়েছি জানালেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাকে 1000 কোটি টাকার সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন তিনি আপাতত। করোনার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি এবং করোনার মন্ত্র যে যেখানে সেখানে, সাইক্লোনের মন্ত্র ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ প্রত্যেকে পাশাপাশি রয়েছেন এবং প্রত্যেকেই বাংলার পাশে রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের চিফ রিপোর্টার তুহিন দাস চন্দ্র। তুহিন, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য এবং আপাতত 1000 কোটির একটি আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন, আর ঠিক কি কি উল্লেখ করলেন তিনি? তুহিন, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শর্মিষ্ঠা, আজ ঠিক কি কি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী? দেখো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় 25 মিনিট প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বসিরহাটে। যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়েছেন ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট নিয়েছেন, প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে রিপোর্ট নিয়েছেন এবং আকাশপথে বিধ্বস্ত এলাকা, আমফানের যে বিপর্যস্ত এলাকা তা খতিয়ে দেখার পর প্রধানমন্ত্রী যেটা বললেন সেটা হলো গোটা দেশ বাংলার পাশে আছে। এই বিপর্যয়ে আমফান মোকাবিলার জন্য পুরোপুরি সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার। গোটা দেশ পশ্চিমবঙ্গের পাশে আছে এবং 1000 কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। এটা কিন্তু প্রাথমিক প্যাকেজ। এর পরেও পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার আরো ঘোষণা করতে পারে রাজ্যের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের জন্য, এই আমফান মোকাবিলার জন্য, পশ্চিমবঙ্গের পাশে থাকার জন্য। এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী এখান থেকে চলে যাবেন ভুবনেশ্বরের দিকে। তার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যেটা ঘোষণা যে 1000 কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ পশ্চিমবঙ্গের জন্য, তার পাশাপাশি যারা এই আমফানের যে তাণ্ডব তাতে যারা মারা গিয়েছেন তাদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অর্থাৎ সব রকম ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্য সরকারের পাশে রয়েছে, রাজ্য সরকারের পাশে থাকবে। এই আমফানের তাণ্ডবে যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের,
উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে, একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বাংলা, সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কিন্তু গতকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম ভাবে রাজ্যের পাশে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম ভাবে রাজ্যের পাশে থেকে এই আমফান মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাহায্য করবে। সেই মতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকালেই মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি মেনে আজ সকালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে আসেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা আকাশপথে পরিদর্শন করেন। আকাশপথে বিপর্যস্ত এলাকা, আমফানের তাণ্ডবে যে সমস্ত বিপর্যস্ত এলাকা, সেই সমস্ত বিপর্যস্ত এলাকার ছবি তিনি দেখেন এবং ছবি দেখবার পর, পরিদর্শন করবার পর বসিরহাটে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। আকাশপথে পরিদর্শনের সময় তার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈঠকেও ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই বৈঠক থেকে রিপোর্ট নেবার পর, প্রাথমিক রিপোর্ট নেবার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা যে রাজ্যের পাশে পুরোপুরি আছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সব রকম ভাবে রাজ্যকে সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এটা গোটা দেশের বিপর্যয়, গোটা দেশ রাজ্যের পাশে আছে। 1000 কোটি টাকার প্রাথমিক আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এবং সেই সঙ্গে যারা মারা গিয়েছেন তাদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপাতত ধন্যবাদ। আমরা কথা বললাম আমাদের চিফ রিপোর্টার তুহিন দাস চন্দ্রের সঙ্গে এবং তিনি যে কথাটি উল্লেখ করলেন যে আপাতত বাংলাকে 1000 কোটির আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের তরফেও মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ সাহায্যের কথা উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। भारत को एक साइक्लोन का मुकाबला करना पड़ा था। उस समय सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उड़ीसा पर हुआ था। आज 1 साल बाद फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो,
पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत